Welcome back, guys. So now let's look at next question of exercise 9.1 class 10th, which is question number 15. Let's read the question. A straight highway leads to the foot of a tower. एक straight highway है जो कहाँ खत्म होता है? Foot of a tower पे. A man standing at the top of the tower observes a car at an angle of depression of 30 degree. Observation point कहाँ है? At the top of the tower. He observes a car on the highway at an angle of depression of 30 degree. Because since he is standing on the top of tower, तो obviously angle of depression है, तो depression angle is given as 30 degree. And that car is approaching the foot of the tower with a uniform speed. और जो कार है वो टॉवर तक अप्रोच कर रही है, आ रही है, मूवेबल कार है with a uniform speed. Speed is actually not given, but here it is written uniform speed. मतलब एक उसकी constant speed में आ रही है. 6 seconds later, 6 seconds बाद the angle of depression of the car is found to be 60 degree. तो 6 seconds later angle of depression पहले 30 degree था. After 6 seconds now angle of depression is 60 degree. So they are asked to find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. तो इस point से जब angle of depression 60 degree हो गया था, ठीक है, उस पॉइंट से फुट ऑफ द टावर तक पहुंचने के लिए कार को कितना टाइम लगेगा. सी चिल्ड्रन, दिस क्वेश्चन इज लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम द अदर क्वेश्चंस जो हमने अभी तक किए हैं, बिकॉज इस क्वेश्चन में आपका स्पीड यूज हो रहा है, देन 6 सेकेंड्स दैट इज टाइम भी यूज हो रहा है. तो स्पीड एंड टाइम, सो आई होप आप रिलेट कर पा रहे होंगे स्पीड एंड टाइम. एंड आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. So we'll use that formula here and then we'll solve. So very first thing is to draw the figure. So let's draw it. So a straight highway is there. Suppose this is a straight, suppose this is a tower and this is straight highway. Okay, so this is tower, say suppose A, B. We don't know the height of tower. Let's say height of tower is h मीटर. दिस इज अ टॉवर. सपोज इसकी हाइट कितनी है? h मीटर. फाइन. नाउ अब एक स्ट्रेट हाईवे है जो फुट ऑफ द टावर, दैट इज बी इज द फुट ऑफ द टावर, तो जो यहां तक जाके जो रुक जाता है. नाउ अ मैन स्टैंडिंग हेयर ऑन द टॉप ऑफ द टावर, ही ऑब्जर्व्स ए कार. यहाँ पे कार ऑब्जर्व कर रहा है. सो इफ ही स्टैंडिंग हेयर दैट मीन्स हॉरिजॉन्टल लेवल ये है, right? This is horizontal level. So this is the position of car at starting. ये position है आपकी कार की. तो यहाँ पे वो observe कर रहा है. तो from here यहाँ observe किया उसने. So angle of depression. What is angle of depression, children? Here 30 degree, right? So this is 30 degree and from alternate angle concept ये भी आपका कितना हो गया? 30 degree. Right now this car is approaching the foot of the tower. ये कार जो है foot of the tower की तरफ, मतलब movement of car इस direction में है. right? 6 seconds later, suppose 6 seconds later ये जो कार थी वो यहाँ पे आके इसकी पोजीशन यहाँ पे हो गई, चेंज हो गई. तो यहाँ पे टाइम कितना लिया यहाँ से यहाँ तक? 6 seconds. राइट, सपोज 6 seconds लिया. और जब यहाँ से उसने ऑब्जर्व किया इस पोजीशन को, इस पॉइंट को, तो now angle of depression is how much? 60 degree. So this is 60 degree and by alternate angle, so this is also 60 degree. Suppose this position is C, this is D. Right? तो जब पहले ऑब्जर्व किया था तो एंगल वॉज 30 डिग्री एंड आफ्टर 6 सेकेंड्स कार की पोजीशन सी पॉइंट पे आ गई और एंगल ऑफ डिप्रेशन बिकम्स 60 डिग्री. नाउ दे हैड आस्क्ड फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार. अब कार की पोजीशन क्या है? अभी कार की पोजीशन है सी. सो आपको टाइम बताना है कार क्या, कि ये कितना टाइम लगेगा टू रीच द फुट ऑफ द टावर. दैट इज यू हैव टू फाइंड डिस्टेंस सी बी, right? But you have to find out time. Now we don't know time. Let's suppose ये t seconds लेगी. t seconds लगेगा टाइम कार को to reach the foot of the tower. Okay, so this is it. Now we'll write the denotions first. Let
AB is equals to टॉर ऑफ हाइट h मीटर. AB क्या है आपके पास? टावर ऑफ हाइट, उसकी आपने अज्यूम करा h मीटर. ओके, और क्या अज्यूम किया हमने? पॉइंट C से टाइम t सेकेंड्स ले रहा है कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर. लेट टाइम टेकन बाय द कार to reach the tower be t seconds. हमने मान लिया बिकॉज टाइम की बात हो रही है तो यूनिट क्या लेंगे हम? सेकेंड्स. बिकॉज पहले भी उन्होंने 6 सेकेंड्स दिया था, सेकेंड्स में है टाइम, सो यहाँ पे भी हमने अज्यूम किया t सेकेंड्स. तो C पॉइंट से टू रीच द फुट ऑफ द टावर टाइम लग रहा है कार को t सेकेंड्स. नाउ चिल्ड्रन, टाइम आपने एज्यूम कर लिया, टावर की हाइट भी एज्यूम कर लिया, बट दे हैड रिटन इन द क्वेश्चन दैट कार इज मूविंग एट यूनिफॉर्म स्पीड. बट व्हाट इज दैट स्पीड? वी डोंट नो. सो हम स्पीड ऑफ कार भी एज्यूम कर लेते हैं. लेट्स से x मीटर पर सेकेंड, बिकॉज टाइम इज इन सेकेंड, सो वी विल टेक यूनिट एज मीटर पर सेकेंड. ओके, सो लेट स्पीड ऑफ कार इज x meter per second. Meter per second is unit of speed. All right. So okay. Now we will find out. See, time आपके पास given है. इस केस में given है 6 second. Here we had assumed. Speed is also known now. मतलब assume कर लिया x meter per second. So speed is there. Time is there. अब हमारे पास क्या बच गया? Distance. So firstly हम distance find out कर लेते हैं. So therefore distance, सबसे पहले हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं CD, देन वी विल फाइंड डिस्टेंस BC. ओके, सो देयरफॉर अगर हम बात करते हैं डिस्टेंस CD, इस वाले डिस्टेंस की बात करते हैं. नाउ यू नो दैट स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. आपको पता है स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो अगर हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा चिल्ड्रन? स्पीड इनटू टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो डिस्टेंस क्या है? स्पीड इनटू टाइम. सो डिस्टेंस CD इज इक्वल्स टू formula is speed into time, right? Now speed in this case, speed, कार की स्पीड हमने क्या assume करा है? x मीटर पर सेकेंड. तो स्पीड की जगह आप क्या लिख देंगे? x into टाइम. टाइम कितना है आपका? डिस्टेंस CD में टाइम ले रहा है 6 सेकेंड्स, सो x into 6 दैट इज 6x, और डिस्टेंस यूनिट इज मीटर. फाइन. सो ये आपके पास आ गया डिस्टेंस CD. Now we will find this distance BC. Okay, now distance BC, again formula is same, speed into time, right? So in this case speed is same because speed of car हमने कौन यूनिफॉर्म स्पीड में मूव कर रही है, that means x मीटर पर सेकेंड. बट here in distance BC हमने टाइम क्या एज्यूम किया है? t सेकेंड्स. सो वी विल राइट t, x इंटू टी दैट इज xt, और ये आपका डिस्टेंस है तो मीटर यूनिट आ गया, राइट? सो हमने अपनी मेन कैलकुलेशन यहाँ पे कर ली है. नाउ वी विल कंसिडर आवर राइट एंगल ट्राइंगल्स. दिस इज 90 डिग्री बिकॉज फुट ऑफ टार है, सो दैट मीन्स वर्टिकल स्ट्रेट. सो दिस इज 60 मीटर. नाउ वी विल टेक राइट एंगल ट्राइंगल्स. सो नाउ इन राइट ट्राइंगल फर्स्ट ऑफ ऑल लेते हैं चिल्ड्रन ABC. सो इन राइट ट्राइंगल ABC. अब यहाँ पे क्या है चिल्ड्रन? आपको फाइंड आउट करना है परपेंडिकुलर. दिस इज द गिवन एंगल, गिवन एंगल के ऑपोजिट साइड, दैट मीन्स AB इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस. सो परपेंडिकुलर एंड बेस रिलेशन, वी नो दैट पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, राइट? सो दिस इज साइन, दिस इज कॉस एंड दिस इज tan. So relation between perpendicular and base, that means tan. Tan is there, tan apply हो रहा है यहाँ पे. P by B means perpendicular by base. So in right triangle ABC, tan we will apply and angle क्या given है आपको ABC में? Tan 60 degree. Okay, so tan 60 degree perpendicular. Perpendicular is AB, base is BC. That means AB upon BC. Okay, now we'll put the values. So tan 60 is √3 equals to AB. AB कितना है चिल्ड्रन? H अपॉन BC. अब BC की वैल्यू चिल्ड्रन आप t सेकेंड्स नहीं ले लेंगे यहाँ पे. BC क्या है? ये जो डिस्टेंस BC आपने फाइंड आउट किया, दैट मीन्स xt
बिकॉज यहाँ पे आपको इसका डिस्टेंस लेना है, इसकी लेंथ लेनी है. तो लेंथ मीन्स डिस्टेंस जो हमने फाइंड आउट किया. सो यू विल राइट डिस्टेंस बी सी कितना है, एक्स टी. सो यहाँ पे आप लिख लेंगे एक्स टी. ओके, सो डू दी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. √3 इंटू एक्स टी is equals to h. All right, since three numbers are unknown here, variables are unknown, so we will keep it as equation number 1. Okay, now we'll consider another triangle. Now in right triangle, which is another one, ABD, this bigger triangle ABD. So now in right triangle ABD, again perpendicular is given and this is base, right? So perpendicular and base relation, that means tan is there. So tan and angle this time is 30 degrees. So tan 30 degree equals to perpendicular is AB, and what is base? This complete, that means DB, or we can say BD. Okay, now put the values. So tan 30 is 1 by √3 equals to AB. AB क्या assume किया है आपने, height h upon BD. Now children, BD is actually BC plus CD. BD क्या है आपके पास, look at the figure here. BD कैसे बना, BC plus CD. So I can write in place of BD as BC plus CD. Okay, now put the values. So 1 by √3 equals to h upon BC. BC distance कितना था children, xt plus CD. CD कितना है आपके पास, 6x. So यहाँ पे values आपने put कर दी distance की. All right, don't write directly 6 seconds or t second. BC plus CD, ये 6 plus t wrong हो जाएगा because this is actually time given. हमें इनका लेंथ लेना, लेंथ मीन्स डिस्टेंस जो हमने आपने ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया. सो एक्स टी प्लस 6x. नाउ विल डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. सो ये क्या हो जाएगा चिल्ड्रन, एक्स टी प्लस 6x जब 1 से मल्टीप्लाई होगा, सो ये एज इट इज रहेगा, एक्स टी प्लस 6x इक्वल्स टू h इंटू √3. ओके, नाउ वी कैन टेक x कॉमन फ्रॉम हियर. So when we have taken x common, so it is t plus 6, okay, equals to h into √3. Now children, from equation number 1 we can replace h with √3 xt. तो यहाँ जो h है इसकी जगह आपने क्या रिप्लेस किया, h की जगह क्या पुट कर सकते हैं, √3 into xt using equation number 1. So right here xt, first of all you can multiply it actually, xt plus 6x is equals to, in place of h आपने लिखा √3 xt into √3 using equation number 1. Okay, now so xt plus 6x equals to √3 into √3, √3 into √3, that means 3. 2 रूट मल्टीप्लाई हो गया तो रूट कैंसल आउट, सो √3 into √3 is 3 and xt, so 3xt. This is also xt, this is 3xt. Take these terms to one side, so 6x is equals to 3xt minus xt. Fine, so ये कितना आ गया चिल्ड्रन, 6x equals to 2xt. 3 minus 1, that is 2xt. Cancel this x from both the sides. तो यहाँ पे क्या आ गया, t is equals to 6 divided by 2. 6 को आप 2 से डिवाइड कर देंगे. कैंसिल इट आउट, 2 1s are 2 and 2 3s are 6. सो t की वैल्यू कितनी आ गई चिल्ड्रन, 3. एंड टाइम, t is टाइम, सो t is 3 seconds. राइट, तो कार को C पॉइंट से टू द फुट ऑफ द टार तक पहुंचने के लिए कितने सेकेंड्स लगेंगे, 3 seconds. राइट, तो आप हेंस लाइन लिख देंगे, हेंस टाइम टेकन by the car to reach the tower is 3 seconds. So this is our final answer. I hope children आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा.
Now we look at the next question. So next question is question number 16. The angles of elevation of the top of a tower from 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower and in the same straight line with it are complementary. Prove that the height of the tower is 6 meter. So इस केस में चिल्ड्रन आपको एक टावर गिवन है और टावर का डिस्टेंस 2 पॉइंट से 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर आर कॉम्प्लीमेंट्री. इन दिस क्वेश्चन एंगल्स आर नॉट गिवन, राइट, लेकिन आपको एक वर्ड गिवन है यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री. तो अगर कॉम्प्लीमेंट्री में अगर एक एंगल आप थीटा एज्यूम करते हैं बिकॉज इट इज अनदर इज एंगल इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस एंगल, सो दूसरा हो जाएगा 90 माइनस थीटा. इफ वन एंगल को आपने थीटा एज्यूम किया, कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स 90 माइनस, सो अदर एंगल इज 90 माइनस थीटा. आपको फाइंड करनी है, प्रूफ करना है हाइट ऑफ द टावर कितना आएगा, 6 मीटर, राइट. So look at this question. Firstly, we'll draw the figure. Okay, so this is tower. Suppose this is tower A, B. हमें height of tower find out करना है. Let's suppose height of tower is h meter. This is base है ground level. So क्या है, the angle of elevation of the top of the tower from 2 points. 2 पॉइंट्स है, सपोज 1 पॉइंट यहाँ पे है, अनदर पॉइंट यहाँ पे है. सो फ्रॉम 2 पॉइंट्स एंगल ऑफ एलिवेशन एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर. एक पॉइंट जो है फुट ऑफ द टावर से, बेस से, यहाँ से 4 मीटर की दूरी पे है. सपोज दिस इज सी पॉइंट एंड दिस इज डी पॉइंट. तो फर्स्ट पॉइंट जो है बेस से कितना डिस्टेंस पे है, 4 मीटर, एंड अनदर पॉइंट फ्रॉम द बेस ओनली, बेस से ही यहाँ से 9 मीटर है. सो चिल्ड्रन यहाँ पे आपको ये कंफ्यूजन नहीं करना है, आप सी डी को 9 मीटर नहीं लेंगे बिकॉज इट इज क्लियरली रिटन इन द क्वेश्चन 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर. बेस ऑफ द टावर से ही दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस गिवन है. ओके, सो ये है. नाउ द पॉइंट्स एंगल्स ऑफ एलिवेशन क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री. तो यहाँ से पहले ऑब्जर्व किया टू द टॉप ऑफ द टावर एंड दिस पॉइंट से भी अनदर पॉइंट से किया ऑब्जर्व टू द टॉप ऑफ द टावर. नाउ जब फर्स्ट पॉइंट से ऑब्जर्व किया, सपोज थीटा है, थीटा आपने एज्यूम कर लिया बिकॉज इन दिस क्वेश्चन एंगल्स आर नॉट गिवन, सो आपको एज्यूम करना पड़ेगा. सो इफ दिस इज थीटा देन दिस विल बी 90 माइनस थीटा एज बोथ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर. ओके, सो यहाँ पे आपका फाइंड आउट करना है आपको हाइट ऑफ टावर, that means perpendicular, and this is base. So perpendicular and base relation we'll use here. So first of all write the denotions. Let AB is equals to height of tower, और height of tower आपने assume किया है h meter. Okay, and since both angles are complementary, so one angle is theta and another is 90 minus theta. Okay, this is right angle. Now we'll consider both triangles one by one. So in right triangle ABC, ABC को आपने कंसिडर किया, तो यूज क्या हो रहा है इसमें, दिस इज गिवन एंगल, मतलब ये एंगल आप ले रहे हैं, इसके ऑपोजिट साइड दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस. गिवन इज बेस एंड वी हैव टू फाइंड आउट परपेंडिकुलर, दैट इज रिलेशन, मतलब परपेंडिकुलर एंड बेस के बीच में. पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले. सो दिस इज साइन, कॉस एंड टैन. सो परपेंडिकुलर एंड बेस किस में यूज हो रहा है, टैन में, राइट. सो वी विल टेक टैन and angle is theta. So tan theta equals to perpendicular is AB whereas base is BC. Now since proper आपके पास कोई ratio नहीं है, so tan theta as it is, put the values. AB is what, H upon BC. BC is 4. Okay, so that's it. इसको आप further फिलहाल solve नहीं कर सकते. Keep this as equation number 1. Okay, now we'll consider another right triangle. Now in right triangle, this one ABD, bigger triangle ABD. This time AB is perpendicular and base is BD. Same tan relation, perpendicular by base. So tan, and angle is how much, 90 minus theta,
right? Angle is 90 minus theta. So perpendicular is AB, whereas base is BD. Okay, now put the values. See children, now tan 90 minus theta is there. आपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कंसेप्ट पढ़ा हुआ है इन आर प्रीवियस चैप्टर 8 में. तो उसमें क्या था, tan 90 माइनस थीटा को आप रिप्लेस कर सकते हैं. फॉर्मूला इज कॉट थीटा. tan 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, कॉट थीटा. ओके, सो इन प्लेस ऑफ tan 90 माइनस थीटा आपने लिख दिया फॉर्मूला कॉट थीटा इक्वल्स टू ए बी. वॉट इज ए बी? ए बी इज एच अपॉन बी डी. बी डी की लेंथ कंप्लीट गिवन है आपके पास 9 मीटर. ओके, सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2. बिकॉज ये भी फर्दर सॉल्व नहीं हो सकती. नाउ हमें फाइंड आउट क्या करना है चिल्ड्रन? एच मीन्स हाइट ऑफ टावर. सो नाउ अब हम इक्वेशन 1 एंड 2 को ऑब्जर्व करते हैं. दिस इज टैन थीटा, दिस इज कॉट थीटा. और हमें दोनों में आपके पास क्योंकि वैल्यूज नहीं है, स्टैंडर्ड रेशियो नहीं है 30-45, सो थीटा आपने लिखा है. बट सिंस वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एच एंड हेयर इन लेफ्ट साइड दिस इज लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज टैन थीटा और यहाँ पे क्या है? कॉट थीटा. आपने एक चीज पढ़ी है कि टैन थीटा एंड कॉट थीटा बोथ आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर. दोनों एक दूसरे के क्या है? रेसिप्रोकल. ठीक है, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ टैन थीटा. सो वी कैन मल्टीप्लाई बोथ दीज इक्वेशंस. सो उससे क्या होगा चिल्ड्रन? टैन थीटा से कॉट थीटा आपका कैंसिल हो जाएगा. लुक हियर, कैसे करेंगे हम? मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 एंड 2. अब मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन्स ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इक्वल टू के इस साइड में, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड के साथ मल्टीप्लाई होगा. सिमिलरली राइट हैंड साइड के साथ मल्टीप्लाई होगा. सो दिस इज टैन थीटा, सो यू विल राइट टैन थीटा इनटू, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में इक्वेशन नंबर 2 में है कॉट थीटा. सो टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल्स टू, अब राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करते हैं इन इक्वेशन नंबर 1, दिस इज h/4 एंड मल्टीप्लाई इन इक्वेशन नंबर 2, this is h/9. Okay, next, now tan theta, we know that cot theta is reciprocal of tan theta, so I can write cot theta as 1 upon tan theta. Fine, equals to h into h, numerator multiply करो, h into h is h square, 2 times हो गया तो h raised to the power 2, and 4 into 9, 4 9s are 36. Cancel this tan with this tan theta. नाउ हमारे पास क्या आ गया? 1 इक्वल्स टू एच स्क्वायर अपॉन 36. ओके, नाउ डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. सो 1 इंटू 36 इज 36 इक्वल्स टू एच स्क्वायर. नाउ हमें h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो ये स्क्वायर क्या हो जाएगा इस साइड में जाके? h इज इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट 36. रूट में कन्वर्ट हो जाता है विथ प्लस माइनस साइन. एंड 36 इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 6. 36 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है? वी कैन राइट 36 एज 6 इंटू 6 एंड 6 इंटू 6 मीन्स आउटसाइड रूट कितना आ जाएगा? 6 ओनली, प्लस माइनस 6. सो यहाँ पे h की दो वैल्यूज आ गई चिल्ड्रन, प्लस 6 एंड माइनस 6. बट व्हाट इज h? h इज एक्चुअली द हाइट ऑफ टावर एंड हाइट ऑफ टावर कैन नेवर बी नेगेटिव. हाइट नेगेटिव नहीं हो सकती, दैट मीन्स वी हैव टू इग्नोर दिस नेगेटिव साइन. सो यू विल राइट इग्नोर negative sign as height of tower can never be negative. Can never be negative. That means आपने माइनस साइन इग्नोर कर दिया तो रह गया ओनली प्लस. सो प्लस 6 मीन्स h की वैल्यू कितनी आ गई? 6. सो हाइट आ गई 6 मीटर. तो यही क्वेश्चन में था कि प्रूव दैट द हाइट ऑफ टावर इज 6 मीटर. हेंस height of tower is 6 meter. All right children, I hope आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे. So with this children we had finished our exercise 9.1 of NCERT, some applications of trigonometry. Thank you guys for supporting. See you in your next video. Till then, take care. Happy learning.